اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا۔ بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی داعیہ تھی اور میں نے اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے ہاں ولادت کروائی تھی۔ سبھی لوگوں کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی عثمان میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اماں جان، آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانو کے لیے۔ میں نے کہا کہ بانو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک بکری کی ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے اس کا نام بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک الگ سے کمرہ بھی بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی عثمان کی جان اس بکری میں بستی ہے، اور مولوی عثمان کہتا تھا کہ جب سے اس بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات ہی بدل گئے ہیں، کیونکہ وہ بکری تھی ہی بڑی خوبصورت۔ وہ بکری لمبی اور سفید رنگ کی تھی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا خیال ہی بہت رکھا کرتا تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پر چلی گئی اور وہاں پر جا کر پاس بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عثمان، پتہ کر یہ کس کی حرکت ہے؟ وہ خود حیران و پریشان ہے کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہیں تھی، لیکن جب پتہ کیا گیا کہ یہ کس کی کارستانی ہے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا تھا۔ اس داعیہ کا کہنا ہے کہ مولوی عثمان میرے ہاتھوں ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی ہی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ کہیں آیا جایا کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تھی اور مجھ سے دعا لے کر چلی جاتی تھی، کیونکہ میں اس گاؤں کی داعیہ تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالی ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو پتا ہے ہم غریب لوگ ہیں، اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائیں گے، اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا کہ جب وہ کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ اس نے اس کا نام بانو رکھ دیا اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا تھا اس کو جیسے اس کی اپنی اولاد۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ ایک پاؤ دودھ میرے لیے بھی رکھ دیا کرو، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کر کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہو۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا کہ میری بکری کی ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو مجھے پتا نہیں خالہ، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا تھا، کیونکہ یہ گاؤں تھا اور یہاں پر کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔
यह कमरा उसने बानो के लिए ही बना रखा था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा कि देख, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन वो जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वो ये गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है। मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तू बाहर चला जा, और मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कहीं मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही? क्योंकि मैंने बहुत सारी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा करवाए थे। ऐसा लगता था कि अब ये सब कुछ हर रोज मेरे साथ होता है। लेकिन जब आंखें मलकर एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नौमौलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया, उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीबी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो दूध लेने के लिए ही आई थी, लेकिन जब उसने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई, और उसकी बीबी भी। उसने कहा कि ये क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा क्या पागल हो गई हो, देख नहीं रही बच्चा है, और ये बच्चा बेटा है। उसने कहा कि बेटा? किसका बेटा? ये बच्चा कहां से आ गया? तुम तो अंदर बानो के पास गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा हाँ, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। चुनाचे मौलवी उस्मान की बीवी ने बढ़कर मुझसे वो बच्चा ले लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल करती हूँ। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी थी और बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया, उसने कहा कि बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं, इतने खराब हैं कि तू भी कभी ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी की यहाँ विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा, कैसा है? मैंने कहा कि इंसानी बच्चा पैदा हुआ है कमबख्त। ये बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा कर लाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाएं। लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा कि मजाक? जाके देख तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन अंदर भागा और मैं भी उसके पीछे गई चली। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटाया हुआ था और दूसरी औरत को कहा था कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध लेकर आओ, क्योंकि उस औरत के यहाँ भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो फीडर और दूध ले आई और अब इस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी। मैं एक ही नजर में ये देखकर बता दिया करती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब इस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी उस्मान तो जमीन पर बैठ गया और अपना सर पीटने लगा। उसने कहा कि ये कौन सा जमाना आ गया है, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा कि हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, ये सब कुछ क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे पास रहती थी, तू इसका ख्याल करता था। उसने कहा कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये कुछ हो जाएगा और मेरी बकरी की यहाँ विलादत होगी। और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, न कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे तो उसको भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो हैरान नहीं थी।
हम ये सोच रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अमूमन औरतों को बच्चों का बहुत शौक होता है, लेकिन उस औरत से जब भी मैं पूछती थी तो वो यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़े बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो इसकी सांस नहीं आएगी। मैंने कहा कि शम्मा, तुम भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने या ना बोलने से क्या हो जाएगा। यही उस बकरी को उठाकर लाया था। पूरा दिन इसके आसपास फिरता रहता था। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा घास जमीन पर उठाकर दे मारा। उसने कहा कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही है? उसने कहा कि नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मौलवी ने कहा कि इस बच्चे का क्या करें। इससे पहले कि मैं शमा को कुछ बोलती, कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफा समझाया मैंने और कितने झगड़े किए, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम ही इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, बहुत खिदमत होती है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी। उसने कहा कि देखे ना अम्मा, मैंने इसे इतनी दफा कहा कि हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और ना मुझे ये शहर लेकर गए। उन्होंने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो उनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। मैंने उससे कहा कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, तो दाइया ने कहा कि ऐसे तो किसी के बच्चे नहीं मिलते। शम्मा ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर ऐसा करम किया है कि एक ही साथ 3 बेटियां पैदा हुई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थे। उसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता। और फिर मेरी बहन की औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, उसने कहा कि उसका बाप कम जात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर नीच जात का खून हो। देखिए उसने कितने बड़े बोल बोले थे। शायद इसी वजह से उसको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। उसने मुझे कभी भी संजीदा नहीं लिया, ना मेरा इलाज करवाया और ना ही मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने के लिए ले गए। मैंने कहा किसी से औलाद ले लेते हैं, तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले आते हैं। तभी उसने मुझे बुरा भला कहा, बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लें क्या मामला हुआ है। अब उस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया है, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं हुआ। मेरी ही बद्दुआ लगी है शायद। मैंने कहा कि शम्मा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? क्या तूने ये मांगा था? तो शम्मा ज़ेरे लब कुछ कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा कि क्या बोली? तो उसने कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं नहीं जानना चाहती कि ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पाल लूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली आई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे कभी खाला कहता था तो कभी अम्मा कहता था। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा कि बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? क्या यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं?
मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी तुम लोगों की आधी जिंदगी गुजर गई है, बच्चे पैदा नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे पता लगाना है कि ये किसकी कारस्तानी है, किसने किया है सब कुछ मेरी बकरी के साथ, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसके गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैंने उसे कहा कि मुझे एक मामला लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब अम्मा, आप ये बात ऐसे नहीं कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि सबूत तो यही है कि वो उस बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है, उसे गले से लगाकर बैठी है, छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ उसी माँ को होती है जिसने खुद बच्चा जन्म दिया, और माँ की मोहब्बत उस पल और बढ़ जाती है जब वो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। तो ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, बस उस बच्चे का ख्याल कर रही थी। मौलवी उस्मान ने कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वो माँ मरने वाली थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला। उसने कहा कि तेरी बीवी भारी भरकम वजूद की औरत नहीं है। अरे वो मां बनने वाली हो तो तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को पता न चले। और फिर तू तो पिछले दिनों तबलीग पर भी गया हुआ था, याद है ना तुझे, और परसों ही वापस आया था। मौलवी उस्मान सोचने लगा। उसने कहा, हाँ बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया। मैंने कहा कि मेरा भी तजुर्बा है, ये बच्चा एक दिन का नहीं है, ये कम से कम 4 या 5 दिन का बच्चा है। मौलवी उस्मान ने कहा कि अगर ये सब कुछ मेरी बीवी ने किया है तो फिर बानो को मारने की क्या जरूरत थी, उसने उसे क्यों मार डाला। मैंने कहा ताकि कहानी बन सके। अब तू बानो को छोड़ दे, वो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तुझे पता करना है कि यह बच्चा तेरी बीवी का है या नहीं। मैंने कहा मैं कैसे पता कर सकता हूँ। उसने कहा कि तू पता ना कर, मैं ही पता कर लूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे यकीन है कि ये और शमा झूठ बोल रही है, ये बच्चा उसी का है जो उसने किसी और मर्द के साथ पैदा किया है और फिर उसे यहाँ पर रखकर कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को एक मर्द से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वो दूसरे मर्द से शादी कर लेती है तो औलाद हो जाती है। और मर्द के मामले में भी तो ऐसा ही होता है कि एक बीवी से बच्चे नहीं होते, लेकिन दूसरी बीवी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। और ये तो हमारे मुआशरे में होता ही रहता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं अब किसी तरह शम्मा को देखना चाहती थी, उसके वजूद का जायजा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही काम था। मैं तो औरत की चाल देखकर बता देती थी कि इसका कौन सा महीना चल रहा है। मैं जाकर उस औरत के पास बैठ गई। मैंने कहा कि तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं है तो मैं तेरी मदद करने आ गई हूँ। बच्चा ठीक तो है ना? उसने कहा कि क्यों ठीक ना होगा अपनी। शम्मा की जुबान कुछ बोलते बोलते रुक गई। वो क्या कहना चाहती थी कि अपनी माँ के पास है इसलिए बच्चा ठीक है। मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर को बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला। मैं देखना चाहती थी कि क्या इसकी चाल में कोई फर्क है। दूसरी तरफ मौलवी उस्मान बाहर निकल गया था। वो ये पता करना चाहता था कि यह मामला कैसे हुआ है। वो आसपास के मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, लेकिन लोग उसको बताने के बजाय उल्टा उसको बातें सुना रहे थे। लेकिन उसने ये जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है, और इधर मैं अपनी तफ्तीश में मसरूफ थी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शम्मा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। खैर, शम्मा बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गया जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई। उसने कहा कि अम्मा, वो सलमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलें। मैंने कहा कि हाँ आती हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहाँ बच्चा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि किसी और की बात हो रही है।
क्योंकि सलमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये अपने मामू के घर गई हुई थी। 4 दिन पहले वापस आई है और तब से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है और उसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब उसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में देखने दो, क्या मामला है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इससे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो यहाँ से बाहर चले जाओ। चनाचे मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा। जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा कि नहीं अम्मा, बस आप मुझे बचा लें, बाहर जाकर सबको ये कह दें कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि ये देख मेरा हाथ। जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा कि तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा कि वो तो मैंने शम्मा को दे दी। मैंने कहा कि शम्मा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी कि वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा उस बच्चे का बाप कौन था? तो अलाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा कि इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का ऑफिसर था। वो बहुत ही खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहाँ से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। वो तो चला गया यहाँ से। मैं ही उसकी इश्क में पागल हो गई थी और ये बात मैंने सिर्फ शमा को बताई थी और शमा को ही पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उसे ये सब कुछ छुपाना आसान था क्योंकि वो बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा कि तुम वापस आ जा, हम इस मामले को संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा बानों के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पी के सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया और आप कुछ पल को सो गई थी। मेरे साथ ये पहले भी होता था कि मैं हुक्का पीती थी तो मुझे अचानक से नींद आ जाती थी, लेकिन उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा कि मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका है। मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शम्मा इसको अच्छे तरीके से पाल लेगी। चुनाचे मैंने ये सोचकर उसका ऐब छुपा लिया, क्योंकि हदीस में आता है कि जो किसी शख्स का इस दुनिया के अंदर ऐब छुपाएगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब छुपाएगा। चुनाचे मैंने बाहर जाकर कह दिया कि सब कुछ ठीक है और मैंने उसको दवा दे दी है, वो चंद ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तुम लोगों ने उसको ज्यादा तंग नहीं करना और ना ही उससे ज्यादा सवाल जवाब करने हैं। और मैं इसलिए भी खामोश हो गई थी कि इसमें उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं था। और ये भी अच्छा किया उसने कि उसने वो बच्चा कचरे पर फेंकने की बजाय अपनी सहेली को दे दिया, क्योंकि बाज ऐसे कमीने लोग होते हैं जो कि अपनी हवस पूरी करने के बाद अपने होने वाले बच्चों को कचरे के ढेर पर फेंक कर चले जाते हैं। उनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। चुनाचे इसलिए मैं खामोश हो गई और मौलवी उस्मान को जाकर समझाया कि यह बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया है, अब तुझे इसका ख्याल करना है। शायद अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुन लिया है। और मैंने शमा से इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया था, बल्कि मैंने इस मामले पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। लेकिन ये बात वाकई बहुत अजीब थी,
कुछ बच्चे के आने के बाद मौलवी उस्मान के हालात बहुत बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत की रहल पहल हो गई। अब वो भी इस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता था और प्यार करता था और शम्मा भी खुश थी। और जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी औलाद की हिफाजत करें, उनके आने जाने पर और उनके दोस्तों पर नजर रखें, क्योंकि अच्छे दोस्त और अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोबत और बुरे लोग इंसान को बुरा बना देते हैं। और हर दफा कसूर वालिदैन का ही नहीं होता, बल्कि बाज रंग सोबत के भी होते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करें और उन पर नजर रखें और उनको अच्छी सोबत इख्तियार करवाएं, क्योंकि आज का दौर बहुत ही पुरफितन दौर है। आज बेहयाई सर चढ़कर बोल रही है। आज कमीने लोग ऊपर चले गए हैं और इज्जतदार लोग नीचे आ गए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत कमीने लोग ऊपर चले जाएंगे, यानी कि हाकिम बन जाएंगे, और इज्जतदार और नेक लोग नीचे आ जाएंगे, यानी कि महकूम बन जाएंगे। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत जिना आम हो जाएगा। आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं। हर रोज आपको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लिहाजा खुदारा खुद भी दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करें और अपने बच्चों को भी सिखलाएं, ताकि उनके अंदर खौफ खुदा पैदा हो सके और वो गुनाहों से बाज आकर अपनी जिंदगी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि जैसे ही आपकी औलाद जवान हो तो उनकी फौरन शादियां कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।